Welcome back students, Shalini this side from Acme English classes. Today we are going to do or learn the poem A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris from class 10th CBSE book First Flight. So let's get started. If we talk about the central idea of the poem, it refers that the poem or the poem offers a contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि जो टाइगर इन द जू है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में है, कन्फाइंड है, एनकेज्ड है. बट ऑन द अदर हैंड जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, नेचुरल सराउंडिंग्स में है, इट इज़ फ्री to express his fear or to display his fear among the people. The poem moves from the jungle, zoo to the jungle, and again to the zoo. And the central idea or the theme, if we talk about, then it is considered as freedom. Moreover, the poet highlights the idea by comparing the movements of the tiger. आप देखेंगे टाइगर की movements इसमें इस पूरी पोइट्री में डिस्क्राइब की हुई हैं, जिसके थ्रू ही wants to convey the message to stop cruelty to the animals and to make people realize that they are also having right to survive, okay, in their natural habitat. So let's get started. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet, in his quiet rage. So it indicates he refers to the tiger. आप देखेंगे टाइगर को यहाँ पर ही की तरह से एक ह्यूमन क्रीचर की तरह से, एक ह्यूमन बीइंग की तरह से डिफाइन किया जा रहा है. सो ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मीनिंग होता है किसी को फॉलो करना. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब वेराइटी ऑफ, आप देखेंगे टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं एंड दे आर वेरी इन डीप एंड ब्राइट कलर्स. और उसमें शेड्स कौन से होते हैं? वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, ओके, एंड दे लुक वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव. The few steps of his cage. In the first line, he is giving the description of the tiger, कि tiger being the symbolism or the symbol of ferociousness and the symbol of rage, pride, glory in its kingdom. कि टाइगर के नेम से ही एक उसका सिंबल क्रिएट होता है, प्राइड से रिलेटेड, ग्लोरी से रिलेटेड, फिरोशियसनेस से रिलेटेड, जिसमें बहुत एंगर है, एंड इट हैज़ द स्ट्रेंथ टू क्रिएट द fear among the minds of the people. Moreover, the poet is explaining that the pads on velvet quiet. Velvet आपको पता है एक टेक्सचर होता है और एक ऐसा टेक्सचर होता है जो बहुत स्मूथ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. सो ही इज सेइंग कि जो टाइगर के पॉज होते हैं, they are actually, these are very soft in texture, okay, and when he moves forward, when he steps forward, तो उसकी कोई साउंड क्रिएट नहीं होती. इट सीम्स कि हाइडिंग वे में वो किसी वे में किसी ना किसी फॉर्म में अटैक करने जा रहा है. एंड इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि टाइगर जो है वो सिंबल है रेज का, एक्सट्रीम एंगर का, बट यहाँ पर वो क्वाइट है बिकॉज ही इज़ इन cage. He is not in his free activity. He is not in his free surroundings. Now in the second stanza, the poet is giving the suggestion. He is saying that he should be lurking in shadow. Lurking means उसको hide करना चाहिए shadow में, because आप देखेंगे, and sliding through. Sliding का मतलब होता है move करते हुए जाना through long grass near the water hole where plump deer pass. It means the poet is giving suggestion that he is born to have the free movement. So he is supposed to move freely or hide himself among the bushes or behind the bushes, जिससे कि wherever he goes near the water bodies, जहाँ पर वो छुप के अटैक करता है, किस पर? जो उसके फेवरेट प्रे होते हैं या उसका जो फेवरेट विक्टिम है, दैट इज नोन एज प्लम डियर. Okay, so he is saying that he should be given this opportunity to move freely, to hide himself, and to be ready for the encounter, to be ready for attacking or to grab his victim. और उसका victim कौन है? आपको पता है कि टाइगर का मेन victim कौन होता है, उसका मेन प्रे कौन है? प्लम डियर. प्लम का मीनिंग है स्लाइट हेल्दी, आप उसको बोल सकते हैं.
Then proceeding further towards stanza 3, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So he is saying that he should have the right, जैसे आपको पता होगा कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं, वी मस्ट हैव बीन ऑब्जर्विंग इन मूवीज़ एंड वी मस्ट हैव कमिंग अक्रॉस थ्रू रीडिंग कि जो टाइगर्स होते हैं दे आर अ सोर्स ऑफ फियर फॉर स्पेसिफिकली फॉर विलेजर्स, कि जो आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया के नियर बाय जो विलेजेस होते हैं वहाँ के हाउसेस के लिए ग्रेट फियर होता है सभी के माइंड में. सो ही शुड हैव द राइट कि इसको फियरलेसनेस के से कोरिलेट किया जा रहा है, इसको फिरोशियस कहा जाता है, इसको सिंबल ऑफ प्राइड कहा जाता है. तो ही इज़ बॉर्न टू बी फ्री एंड टू मूव फ्री. तो उसके लिए ही शुड बी गिवन दैट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो लोगों में टेरर को क्रिएट करे. अपने वाइट जो फैंक्स हैं, फैंक्स का मतलब है, बेयरिंग का मतलब है डिस्प्ले करना, वाइट फैंक्स मतलब जो उसके बहुत शार्प टीथ हैं उनको डिस्प्ले करना, उनके क्लॉज के थ्रू ही इज़ दीज आर द वेज और दीज आर हिज बॉडी ऑर्गन्स और फीचर्स जो विलेजर्स के माइंड में, विलेज में एक टेरर की फीलिंग को क्रिएट करते हैं. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But the sorry state of affairs is that he should be in the open area, he should be in the natural surroundings or habitat, but he is actually locked or encaged in a solid cell. concrete word का meaning होता है, concrete means आप देखेंगे जो बिल्डिंग मटेरियल जो एक आपके स्टोन और सीमेंट वगैरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई भी चीज़ को फ्रेमिंग की जाती है तो दे बिकम वेरी सॉलिड. तो यहाँ पर जो वो एनग्रॉस्ड है वो किस चीज़ में लॉक्ड है, ही इज़ लॉक्ड इन अ सॉलिड सेल. और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पार है, दैट इज़ ऑल्सो बिहाइंड बार्स. बार्स मीन्स जो सेल के बार्स हैं. एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. एंड वट ही इज़ सपोज टू डू, ही इज़ जस्ट सपोज टू कवर द शॉर्ट डिस्टेंस. आप देखेंगे केज में जितना लिमिटेड एरिया है उसको उसी में ही उसी डिस्टेंस को ही कवर अप करना है. एंड ही इज़ नॉट एट ऑल giving the attention to the visitors because he knows very well that they are not at all afraid of him. Okay, because if he is in the free surroundings then he can create fear, he can display his great anger, rage और सिंबल ऑफ प्राइड इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स, या उसका जो किंगडम है ये लोगों के माइंड में जो फियर क्रिएट करना है. बट हियर ही इज़ व्हेन ही इज़ ट्रैप्ड इन द सेल देन ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So he hears the last voice at night. Last voice of night का मीनिंग क्या है? नाइट में आप देखेंगे जैसे पेट्रोलिंग कार्स का मीनिंग क्या होता है? वो कार्स में जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दे आर असाइंड सम ड्यूटीज़ टू गार्ड और टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया. तो जहाँ पर जो अपनी ड्यूटीज़ के लिए आते हैं वहाँ पर वो उनकी वॉइस को ऑब्जर्व करता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आइज से उनको कंटिन्यूसली स्टेयर करता है. ही इज़ कंटिन्यूसली लुकिंग एट देम एट द ब्रिलियंट स्टार्स. जैसे कि ब्रिलियंट स्टार्स होते हैं, लाइक आप देखेंगे स्टार्स दे आर विजिबल वेरी रेयर, बहुत रेयर विजिबल होते हैं, बट दे आर हैविंग देयर ओन ब्यूटी, दे आर कंसिडर्ड एज ब्रिलियंट. सो इन द सेम मैनर जो टाइगर है उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी आइडेंटिटी कब हाईलाइट की जाती है? जब वो अपने आप को ब्रिलियंट कंसिडर करता है एंड ही इज़ सीन समटाइम्स. बहुत रेयर लोगों को वो विजिबल होता है. ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोम. We are proceeding towards poetic devices. At the end I will give you the recapitulation of the same. Like first one आप देखेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पोएटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि जहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स के अपार्ट किसी भी क्रीचर को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब ह्यूमन क्वालिटीज से कोरिलेट किया जाता है, सो दिस इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर टाइगर के लिए हमने ही
और हिज वर्ड को यूज़ किया है। देन राइम स्कीम आपकी ABCB रहेगी। लाइक आप देखेंगे जैसे फर्स्ट में स्ट्राइप्स है, देन केज और रेज उसमें सिमिलैरिटी है तो हमने इसको B में कंसिडर किया। एंड देन क्वाइट, दिस इज़ कंसिडर्ड एज C, ये आपकी राइम स्कीम रहेगी। एंड enjambment का मीनिंग, दिस आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस पोम्स ऑल्सो, दैट व्हेन सेम सेंटेंस कंटिन्यूड without having any punctuation mark, okay, in order to refer or in order to express any sort of idea. उसके बाद आपका कॉन्सोनेंस है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होती है इन बिटवीन। लाइक आप किसी भी उसमें देखेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट, जहाँ पर बिगनिंग में लेटर्स को रिपीट किया जाता है दैट इज़ नोन एज एलिट्रेशन, बट जहाँ पर मिडल में और एंडिंग में किया जाता है उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंस। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस विच यू हैव टू कीप इन माइंड। लाइक लाइन 1 में आप देख सकते हैं स्टॉक्स और स्ट्राइप्स, एस साउंड को जो है इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द लाइन, दिस इज मैंशनड हियर। देन ऑक्सीमोरॉन, आई थिंक दिस इज न्यू पोएटिक डिवाइस फॉर यू, वेयर कॉन्ट्राडिक्टरी जो आइडियाज़ हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन। जैसे आप देखेंगे लाइन 4 में आपको दिया हुआ है क्वाइट रेज। क्वाइट का मीनिंग होता है साइलेंस और रेज का मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंगर। तो आप डोंट यू फील सो कि जो रेज होता है इट इज़ ऑलवेज इन रिजल्ट्स इन वॉयलेंस, तो वॉयलेंस में साइलेंस कैसे हुआ? दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़। ओके, देन इमेजरी, यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड्स हैं या कुछ वर्ब्स हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है। कुछ ऐसे लाइक इसमें दिया जा रहा है स्टॉक्स, देन फ्यू स्टेप्स, आफ्टर दैट क्वाइट रेज, देन यू आर हैविंग लर्किंग, यू आर हैविंग स्लाइडिंग। ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है एक सीन को क्रिएट करने के लिए और इन ऑर्डर टू ग्रैब रीडर्स अटेंशन, उसको कहा जाता है इमेजरी। और जो एक नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल फीलिंग्स हैं उनसे कोरिलेट किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन यू आर हैविंग एसोनेंस। एसोनेंस का मीनिंग हुआ आपका लाइन 1 और 3 में, जहाँ पर आप देखेंगे वोवल्स की साउंड को कोरिलेट किया जा रहा है। ओके, नाउ again I am just giving you the recapitulation of the same कि with the aspect of modernization poet क्या मैसेज देना चाहता है, क्या मैसेज यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है कि with the aspect of modernization needs और जो greed है मैन की, they are obviously ever growing, but मेन थिंग इज़ दैट कि ड्यू टू एडवांसमेंट इट हैज़ डिटेरियोरेटेड द नेचुरल रिसोर्सेज। सो नो डाउट आप देखेंगे जो जू हैं, नेचुरल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, देयर मेन मोटिव इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द जनरल मास अबाउट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज या जो नेशनल जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको कंजर्व करना। ओके, सो however, the main need is to maintain ecological balance and to preserve this planet, to preserve the wildlife and natural resources for present as well as future generation. Hope you have understood this poem. I have given you the detailed explanation along with paraphrasing कि जो जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसको और simplest फॉर्म में along with word meanings followed by poetic devices and message given by the or delivered by the message delivered by the poet. Thank you so much. Stay connected for my forthcoming videos. Thank you.